کربلا کی داستان سنا دی جائے, 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کا نظر آنے لگ جائے. اس لیے کہ حسین اعظم کا تذکرہ رونے دھونے اور ماتم کرنے اور سینہ پیٹنے کے لیے بھی نہیں سنایا جاتا ہے. حسین کا تذکرہ مرے ہوئے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے سنایا جاتا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے, پھر احتمال یزیدیت کے دور کے آنے کا ہے, زمانے نو کو پھر تیری ضرورت ہے اے حسین. تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین, کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین. کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے حسین اعظم سید الشہداء نواسہ رسول سبط رسول کے بارے میں, کہ آج ان کے متعلق تم پوچھتے ہو ان کا تذکرہ کیا ہے, تو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے, نہ پوچھ وقت ان بے زبان کتابوں سے, نہ پوچھ وقت ان بے زباں کتابوں سے, جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ جا حسین زندہ ہے. جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ جا کہ حسین زندہ ہے. حسین اعظم کا احسان ہے پوری امت پر. عزیزان گرامی وقار, بات صرف چھوٹی سی نہیں ہے. میں یہاں پر وہ چند جھلکیاں ہی آپ کے سامنے رکھوں گا. سوشل میڈیا کا دور ہے, کئی ایسے چوہے اس میں آئے ہوئے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے عقیدے اور ان کے ایمان کو برباد کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے لڑکے یہ باتیں کرنے لگ جائے. میں امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں, 4 اماموں میں سے ایک امام ہے. حمایت میں فتویٰ نہیں دیا تھا, شریعت مصطفیٰ کے مطابق دیا تھا, تو خلیفہ نے گرفتار کر کے ان کو کوڑے لگوائے تھے. دونوں ہاتھ زنجیروں سے باندھے جاتے تھے اور پیٹھ کو کھلا کر کے جلاد سے کہا جاتا تھا کوڑے لگاؤ. کوڑا کوئی چھوٹے موٹے پٹے کا نام نہیں ہے, وہ چمڑے کا ایسا بیلٹ ہوتا تھا, جب مارا جاتا تھا تو پیٹھ کی چمڑی لگ کے آ جاتی تھی. امام احمد بن حنبل کو 100 کوڑے پہلے مارے, پھر 100 کوڑے مارے, 300 کوڑے کھائے. آپ نے لکھا ہے, امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں, ایک بار میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا, اس زمانے کا ایک مشہور ڈاکو تھا, چور تھا, اور وہ ملا اور کہا احمد بن حنبل تم سے ایک بات کرنی ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا سنا ہے تم کو خلیفہ وقت نے گرفتار کر کے 100 کوڑے مارے ہیں. کہا ہاں یہ بات تو ہے, میری پیٹھ جھک گئی ہے, 100 کوڑے مارے. وہ ہنسنے لگا. کہا میں چوری کے جرم میں 1500 کوڑے کھا چکا ہوں اب تک, چوری پھر بھی میں نے چھوڑا نہیں. وہ کہہ رہا امام احمد بن حنبل کو ایک بار نہیں بہت بار پکڑا گیا, کل ملا کر 1500 کوڑے کھا چکا ہوں اب تک, لیکن چوری نہیں چھوڑا. امام احمد بن حنبل سے وہ کہتا ہے مجھ جیسا آدمی فاسق و فاجر 1500 کوڑوں سے ڈر کر چوری نہیں چھوڑا, تو تم 100 کوڑوں سے ڈر کر میرے مصطفیٰ کی شریعت نہیں چھوڑ دینا. امام احمد بن حنبل کہتے تھا تو چور, لیکن زندگی کی ایسی بڑی نصیحت دے گیا کہ انہوں نے کتاب میں لکھا آنے والی قوموں کے لیے نصیحت ہے, خوف سے میرے مصطفیٰ کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں. آپ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا جب آپ کے ہاتھوں کو باندھ کر جلاد کوڑے مار رہا تھا تو آپ کی تہبند کھل رہی تھی, آپ کی لنگی کھلنے لگی, اور جیسی کھلنے لگی تو آپ کو ڈر ہوا کہ سطر کھل جائے گا, اور جیسے ہی نیچے آنے لگا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیا آج میں بے سطر ہو جاؤں گا, آج لوگ میرے جسم کو دیکھ لیں گے, ننگا ہو جاؤں گا. اسی اسنا میں راوی کہتے ہیں دونوں ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے زنجیر سے, جلاد کوڑے مار رہا تھا, اچانک غیب سے 2 ہاتھ آئے اور ان ہاتھوں نے احمد بن حنبل کی تہبند کو کس کر باندھ دیا. امام احمد بن حنبل مسکرانے لگ گئے, ہنسنے لگ گئے, اور جلاد سے کہا تو اپنا کام جاری رکھ, جو تو کر رہا تھا. وہ رک گیا کوڑا چھوڑ کر, کہا تھوڑی دیر پہلے تو تم رو رہے تھے, تمہاری لنگی کھل رہی تھی, اور اب اچانک تم ہنس رہے ہو, اور یہ تمہاری تہبند ٹائٹ کس کر کس نے باندھا؟ احمد بن حنبل نے کہا وہ چھوڑ, جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا وہ آ ہی تو گئے. عزیزان گرامی وقار, ہمارے لیے مدد تو آئے گی لیکن امتحان دینا ہوگا. مدد تو آئے گی, امتحان کے میدان میں اترنا ہوگا. اسی لیے ایک فلسفہ بھی میں تمہیں سمجھا دوں. امام حسین کے بارے میں اگر کسی کے دماغ میں تھوڑا سا شک و شبہ بھی آئے کہ وہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے, میدان میں اپنی جان نہیں بچا سکے, اپنے گھر کی عورتوں کو اس طرح سے چھوڑ کر چلے گئے, یہ شوشہ بھی آیا, تو سن لینا امام حسین کے متعلق ایسا اعتراض کرنے والا زمانے کا سب سے بڑا جاہل اور بیوقوف ہے. امام حسین اس کربلا کے میدان میں اپنی جان بچانے نہیں بلکہ اپنی جان دے کر اسلام بچانے گئے تھے, امتحان کے لیے گئے ہوئے تھے. تو وہاں کرامت دکھانا مقصود نہیں تھا. اور اگر طاقت دیکھنا چاہتے ہو حسین اعظم کی, تو حسین ہے, بیٹا تو بہت دور کی بات, پوتا تو بہت دور کی بات. حسین اعظم کی نسل میں 600 سال بعد آنے والا
वाला एक मोइनुद्दीन चिश्ती, जब अजमेर में लोगों ने पानी बंद कर दिया था तो पूरे अन्ना सागर को एक खटोरी में लेकर बता दिया और फिर खटोरी को छोड़कर बताया 600 साल के बाद औलाद में यह असर है, जब चाहे वो नदियों को जमा कर ले, जब चाहे वो नदियों का पानी बहा दे। एक बेटे के अंदर यह ताकत है तो ताजदार करबला का हाल क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। मेरे अजीजों, शक करने वालों के लिए मैं कहता हूं करबला बाद में जाओ, अजमेर पहले चले जाओ और जवाब लेकर के आओ। हालांकि तारीख में यह भी है, अन्ना सागर की तारीख जो है, करामत आपकी मशहूर है, अपने तो अपने गैर भी जानते हैं। तारीख निगारों ने कहा है गरीब नवाज ने जब अपने कूजे में अन्ना सागर के पानी को जमा किया था तो सिर्फ उस तालाब, उस झील का पानी नहीं, अजमेर के अतराफ में जितने कुएं थे, जितने सोते थे, सब सूख कर उस कूजे में आए हुए थे। इसलिए कि उन्होंने सिर्फ कहा था पानी आ जाए, तो जहां जहां पानी था सब हुक्म का ताबे था। अजीजा ने गिरामी वकार, एक दो नहीं, अगर आप यह समझते हैं हुसैन आजम को वहां पर करामत दिखानी थी और अपने बच्चों को बचाना था, हकीकत बात तो यह है वो इम्तिहान देने के लिए गए थे, और अगर करामत दिखाना ही मकसूद होता तो दुनिया की पूरी जमीन गवाह हो जाती। हुसैन तो वो है जो सारे वलियों के बाप हैं, सारे औलिया कराम का सिलसिला वहां तक पहुंचता है, और सबको जो करामतों का हिस्सा मिला है उस शहीद करबला की बरकत से मिला है। आपने अजमेर तो देख लिया, और करबला पर उंगली उठाने से पहले अगर किसी को लगता है हुसैन की ताकत क्या थी क्या नहीं थी, तो मैं उसको दावत देता हूं पहले बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास चला जाए। ईसाइयों ने उस वक्त चैलेंज भी करके बताया था हमारे नबी मुर्दों को जिंदा करते हैं, तुम्हारे नबी ने जिंदा नहीं किया, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अफजल नहीं है। ये तबलीग चल रही थी, तब सरकार गौसे पाक ने क्या किया था, उस ईसाई का हाथ पकड़कर कब्रिस्तान ले गए। तूने तो ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दे जिंदा करते देखा तो नहीं, सुना है, चल मैं तुझे जिंदा करके दिखाऊं। और सरकार गौसे पाक ने बहजतुल असरार और कई मुस्तनद किताबों की रिवायत है, सरकार गौसे आजम ने पूछा बता किसी कब्र के मुताल्लिक, मैं उसको जिंदा करके दिखाऊं। पुरानी एक कब्र को उसने हाथ लगाया, आपने कहा जिंदा बाद में करूंगा, पहले ये बताऊं कौन सोया हुआ है। आज से 200 साल पहले मरा हुआ आदमी है और गाना गाता था और गाना गाकर कमाया करता था, देखना उठाऊंगा तो गाते उठेगा, ठोकर मारी ये कहते हुए कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। कब्र शक हुई और मुर्दा गाते हुए खड़ा भी हुआ। आप ये सोच रहे होंगे करबला की दास्तान का वक्त है, मुहर्रम का महीना है और सुनानी चाहिए वाकयात करबला। यहां गौसो ख्वाजा को कहां से लाया गया? बात हकीकत ये है मेरा गौस भी हुसैन की औलाद में है, मेरा ख्वाजा भी हुसैन की औलाद में है, और इसीलिए फल सिर्फ दिखाया जाता है ताकि दरख्त की ताकत पता चले, क्योंकि अरबी में ये मुहावरा मशहूर है, तो अरफुल अशजार बिअस्मारिहा, दरख्त की कीमत उसके फल से पहचानी जाती है, और फल वो भी 600 साल बाद आने वाला फल, उसके अंदर ये ताकत है, तो फिर मंबा और सर चश्मे में क्या ताकत होगी। इसीलिए मैं कहता हूं हुसैन आजम के मुतालिक ये दिलों में शुकूक और शुबात पैदा करना, और ऐसे बहुत सारे थे जिन्होंने कहा था यजीद रदियल्लाहु अन्हु नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो जोकर तो तड़ी पार हो ही गया। आपको पता होगी, तारीख मालूम होगी, मैं नामों का जिक्र ज्यादा नहीं करता, और ये मारे मेरे मौला हुसैन की। हाँ, तुमने ये कहा था ये सियासी जंग थी, इसलिए कि बिल्ली के खाब में हमेशा छितड़े ही होते हैं, जो सुबह शाम दिन रात सियासत करता है उसको मौला हुसैन की जंग भी सियासत लगती है। जरा तासुब की ऐनक निकाल करके देखो, सियासत की जंग लड़नी भी हो तो आदमी फौज इकट्ठा करके लड़ता है, ना ये कि अपने खानदान के निहत्ते बच्चों को लेकर लड़ता है। सियासत की जंग नहीं है। लोगों ने कहा हक व बातिल का इससे कोई ताल्लुक नहीं, हक व बातिल का ताल्लुक नहीं है। अजीजा ने गिरामी वकार, खुलासा कलाम यह है, लोगों ने अगर यह समझ रखा है कि ताकत के जरिए से जो तख्त हासिल होता है, जैसे बहुत सारे लोगों के जहन दिमाग में यह बात आती है कि आज जिसकी चल रही है उसके पीछे चलना चाहिए, जिसकी चल रही है उसके पीछे चलने में आफियत है। यही सोच सोच करके लोगों ने झंडे बदल दिए, यही सोच सोच करके लोगों ने पट्टे बदल दिए। मियां, आपको मैं ये नसीहत कर रहा हूं, तुम उस कौम से नहीं हो जो सुबह अलग पार्टी, शाम में अलग पार्टी और फिर दूसरे दिन तीसरी पार्टी। तुम्हारा वो मसलक नहीं है, तुम्हारा मसलक वो होना चाहिए जो सैयदुल उलमा ने नारा दिया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह।
हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए इतनी बात कहता हूं। हमारे एक बड़े दानिश्वर साथी उन्होंने कहा, मुल्क शाम के सफर पर थे, दिमश्क गए हुए, उन्होंने कहा तारीख तो पढ़ी थी, तारीख तो बहुत पढ़ी थी, करबला के दास्ताने, दिमश्क से यजीद की हुकूमत, अमीर मुआविया की हुकूमत, सब पढ़ा था। जाकर के पूछा वहां के मकामी लोगों से, सुना है यहां पर एक तख्त सजता था, 20 साल तो अमीर मुआविया ने चलाया था, उसके बाद उनका बेटा बैठा था और उसने एक जुल्म की दास्तान लिखी है, कहां उसका महल है, कहां उसकी कब्र है। लोगों ने हाथ पकड़ करके उस साहब को ले जाकर खड़ा किया एक ऐसी जगह पर जहां दिमश्क का सारा कूड़ा करकट फेंका जाता है, जहां पूरा गार्बेज डंप किया जाता है, कुत्ते पेशाब करते हैं। कहा हमने तो सिर्फ इतना सुना है, इन्हीं कचरों के ढेर में कहीं उसकी कब्र भी मादूम हो गई, मफकूद हो गई, गुम हो गई, पता नहीं है। वो इमारत, वो दौर, वो तख्त, वो सब कोई निशानी बाकी नहीं है। तस्वीर का एक रुख ये है, तस्वीर का एक रुख ये है, जिसके पास 22,000 का लश्कर जर्रार और मुल्क शाम में 1 लाख का लश्कर जर्रार, और उसकी कब्र मादूम, उसकी कब्र मफकूद और तख्त भी नहीं। और हम कहते हैं, फिर उसी साहब का ये बयान भी है, कहा हम चल करके करबला भी आए, इराक के शहर करबला भी आए। लोगों से पूछा कि सुना है 14 सदियों पहले यहां एक बड़ी जंग हुई थी और अहले बैत नबुव्वत और यजीद के फौज के दरमियान, सुना है यहां पर रसूलुल्लाह के शहजादों को टुकड़े टुकड़े किया गया था, उनके जिस्मों पर घोड़े दौड़ा दिए गए थे, और हमने सुना यहां कोई आबादी नहीं थी, पानी पीने का कोई इंतजाम नहीं था। लोग हंस पड़ते हैं, कहते हैं आओ वो दौर अलग था, ना यहां तुम्हें टुकड़े मिलेंगे, ना यहां पे आपो गया मैदान मिलेगा, बल्कि करबला तो एक घनी आबादी वाला शहर बन चुका है। हाथ पकड़कर रोज़ा हुसैन के पास ले जाकर खड़ा कर दिया, देखा हसीन गुंबद जिस पर सोने से कली किया हुआ, उसके ऊपर लाल लहराता हुआ झंडा, और अंदर जाने के बाद मज़ार अक़दस पर मैं खुद हाजिर होकर देखा, हजारों लोग अपनी चिट्ठियां लिख लिख करके हुसैन आजम की कब्र अनवर पर डालकर जाते हैं, इस तस्वुर के साथ कि हमारी परेशानियों का हल इसी में है। हम अपनी हाजतें लेकर आते हैं, कोई लिख करके लाया है मेरा बच्चा बीमार है, कोई लिख कर लाया है मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है, कोई लिख करके लाया है मेरे तिजारत में खसारा है, सब लाकर चिट्ठियां इतनी डाल चुके हैं कि हाजतों की चिट्ठियां छत तक पहुंचती है। अजीजान गिरामी, उस दिन फिर मैंने ये महसूस किया, आज तक 14 सदियों के बाद भी कौम अपनी हाजतें लेकर हुसैन आजम की कब्र पर जा रही है और अपनी हाजतें पूरी हो भी रही हैं। पता ये चला मेरे अजीजों, जब बादशाह जिंदा बैठा होता है तो रियाया अपनी हाजतें ले जाती है। रियाया पब्लिक उसी वक्त अपनी सारी हाजतें लेकर जाती है जब बादशाह कुर्सी पर बैठा हो। पता ये चला यजीद था, हुसैन है और सुबह क़यामत तक रहने वाले हैं। बल्कि इस पूरी तकरीर का खुलासा यह है कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बस मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, समेटता हूं, इसलिए कि आपके यहाँ वक्त की किल्लत है और यहाँ पाबंदी वक्त का ख्याल करना भी जरूरी है। लेकिन इस बात के साथ जाऊंगा, आप एक घनी आबादी में रहने वाले हो, एक घनी आबादी। मदनपुरा का नाम हमेशा से मशहूर रहा है, टॉप लिस्टेड है, लेकिन किन बातों के लिए टॉप लिस्टेड है ये अलग मसले हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं हुसैन आजम को सुनने के बाद मुंबई उज़्मा के इस खित्ते से एक ऐसा इनकलाब है, दुनिया ढूंढती है कि हमने सुना है इस गली के हर बच्चे के अंदर हुसैन की गुलामी नजर आती है। परचम हुसैन यहां से उठे और इनकलाब की आवाज आए। दुनिया अगर कंप्रोमाइज करती है तो करे, लेकिन मदनपुरा का हर बच्चा ये अज़म करके उठे, रोटी ना मिले हम मान लेंगे, छत ना मिले हम मान लेंगे, पानी ना मिले हम मान लेंगे, कपड़े ना मिले हम मान लेंगे, हम अपनी जरूरतों को कुर्बान कर देंगे, लेकिन मेरे मुस्तफा की इज्जत पर आंच है, हम अपनी जान कुर्बान करेंगे, लेकिन कंप्रोमाइज। ये पैगाम है करबला का, हम कोई समझौता। हुसैन का पैगाम ये भी है, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल दे दें। अजीजान गिरामी वक़ार, करोड़ों सलाम तुरबत हुसैन पर, करोड़ों रहमतें नाजिल हो उनके बच्चों पर। गुल अज़ार फातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया, लेकिन उसके बावजूद इन जालिमों ने टुकड़े तो किए, हमारे दिलों से आज तक हुसैन को निकाल ना सके, आज तक निकाल ना सके। और मेरा यकीन है सुबह क़यामत तक हम में से कोई भी हुसैन को मिटा नहीं सकेगा, हमारे अंदर से हुसैन को छीना नहीं जा सकेगा। और ये निस्बत अल्लाह यहां भी सलामत रखे और वहां भी सलामत रखे।
बस इसलिए सुन्नी हुसैन आजम का तस्करा करते हैं कि हमें मेरे मुस्तफा की बात पर यकीन है, जन्नत जाना हो तो जन्नती जवानों के सरदार की चिट्ठी तो लेनी ही पड़ेगी। हमें पता है, इसलिए कि हुर बिन यजीद, एक ऐसे शख्स का जिक्र करके जाता हूं, करबला के मैदान में 1000 की फौज यजीद की तरफ से लेकर सबसे पहले हुसैन आजम का रास्ता रोकने के लिए आए थे, लेकिन किस्मत बदल गई। 1 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक यजीद की फौज में आने वाला हुर बिन यजीद, लेकिन 10वीं मुहर्रम आने से पहले यानी शब को जाकर के अमर बिन साद से कहा, जो उस पसाला तका हुसैन जो 3 बातें कह रहे मान लो ना, वो सुलह चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। अमर बिन साद ने कहा मैं मजबूर हूं, उबैदुल्लाह बिन जियाद कुफा का गवर्नर, वो चाहता है हुसैन का सर काट करके लाएं। हुर बिन यजीद ने कहा जालिमों तुम नहीं देख रहे वो रसूलुल्लाह का नवासा है, आया था यजीद की तरफ से। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है सुनिए, आया था यजीद की तरफ से, लेकिन दिल बदला और बीच मैदान में खड़े होकर कांपने लगा। कूफा के लोगों ने कहा हुर बिन यजीद तू कूफा का बड़ा पहलवान है, तेरा नाम लेते लोग डरते हैं और आज तू डर के मारे कांप रहा है, क्या बात है? हुर बिन यजीद ने क्या कहा था पता है? तारीखी जुमला है, कहा मैं देख रहा हूं एक तरफ जन्नत है और एक तरफ दोज़ख है, एक तरफ जन्नत और एक तरफ दोज़ख है, और अल्लाह ने मेरे हाथ में यह फैसला दे दिया जिंदगी में इधर जाना है या उधर जाना है। मैंने अम्र बिन साद को लात मार दी और कहा ये ले 1000 की फौज तुझे मुबारक, मैं खीमा हुसैन का गुलाम बनने को तैयार। आया इमाम हुसैन के कदमों में गिरा, माफी तलब की, इमाम हुसैन ने गले लगा दिया और उसके बाद घोड़े पर जो सवार हुआ हुर बिन यजीद कहते हैं उस वक्त तक घोड़े से नहीं उतरूंगा जब तक मैं अपनी गलती का कफारा ना अदा करूं। ये अब आखिरी बात, क्यों मैंने हुर बिन यजीद का जिक्र छेड़ा है? करबला के मैदान में दूसरे दिन जब जंग शुरू हुई थी तो सबसे पहले उतरने वाला मैदान में इमाम हुसैन की तरफ से हुर बिन यजीद है, लेकिन लोग ये तो बताते हैं इमाम हुसैन के शहजादे मारे गए, काटे गए, कत्ल किए गए, लेकिन ये भी सुन के जाओ हुसैन के पास एक रात पहले आने वाला हुर बिन यजीद सुबह से जो लड़ता रहा अकेले लड़ते लड़ते कूफियों के 120 लोगों को मार गिराया था। ये तारीख भी सुन के जाओ। वो कत्ल तो हुए हैं लेकिन यूं ही नहीं मुंह छुपाकर कत्ल हुए हैं, बल्कि जालिमों के छक्के छुड़ाकर कत्ल किए हुए हैं, वो शहीद हुए। 120 लोगों को फना फिन्नार किया, मौत के घाट उतारा। ये वाकया मैंने पढ़ा।